Assalamu alaikum students. How are you? I hope that you are all well. Welcome to the Educator online classes. So let's start our topic. Today's our topic is magnetic effect of steady current. In this topic we will learn that current passes through a conductor and magnetic field produced around it. To understand and study magnetic effect of steady current, first of all we have to know about electromagnetism. So what is electromagnetism? It is the study of magnetic effect of current. It is the branch of physics in which we study the magnetic effect of current. Electromagnetism is the combination of two words, electricity and magnetism. In the previous lectures, we discussed the electricity related to the terms charges, current and electric field. There are two types of charges, positive and negative charges. And in magnetism is the process or phenomena of producing magnetic field. In magnetism, we discussed the terms magnetic field or magnetic poles. In the charges, there are two types of charges, positive and negative charge. And we know the positive charge, they resist the electric field which is radially outward. The direction of electric field in the positive charge in outward direction and in the negative charge is inward direction. It means the electric field start from positive charge and end on the negative charge, terminate on the negative charge. And in the magnetism, there are magnets and magnetic poles. So there are two poles, north pole and south pole. The magnetic field around the magnets start from the north pole and end on the south pole. So magnetic fields around the magnets are start from the north and end on the south pole. As we discussed in the previous lectures, when the charges are at rest, we discussed the branch of physics called electrostatics. Then we discussed when the charges are moved, the rate of flow of charge is called current. So there are some basic differences in electricity and magnetism. In electricity, there are two types of charges, positive and negative. We say that same charges repel each other and opposite charges attract each other. And the direction of electric field in positive outward and in negative inward direction. The electric field symbol is E and magnetic field symbol is B. हम कहते हैं कि बेसिक जो हमारे पास इसमें जो सिमिलरिटीज़ हैं वो क्या हैं कि सेम चार्जेस हमारे पास रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. लेकिन जो हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं उसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं. नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होती हैं और एंड होती हैं साउथ पोल के ऊपर. अब हम बेसिक डिफरेंस मालूम करना चाह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिज्म में. हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑल द टाइम प्रेजेंट वेदर चार्जेस आर मूव और नॉट. हम कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो हमेशा मौजूद होती हैं चार्जेस के अराउंड, चाहे वो रेस्ट में हों या फिर मूव कर रहे हों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्रेजेंट रहती हैं उसके अराउंड. लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड हैं वो कब प्रोड्यूस होती हैं? बट द मैग्नेटिक फील्ड अकर्स ओनली व्हेन द चार्जेस मूव. जब चार्जेस मूव करेंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी उन चार्जेस के अराउंड. अदरवाइज अगर चार्जेस रेस्ट में हैं तो हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड नहीं होगी. तो ये था एक बेसिक डिफरेंस. नेक्स्ट क्या है बेसिक डिफरेंस इसके दरमियान? इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी सेपरेटेड इनटू सिंगल टाइप्स. इट मीन्स हम जो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को सेपरेट कर सकते हैं इनटू अ सिंगल टाइप. इट मीन्स फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोडियम का एटम है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, मीन्स दोनों न्यूट्रल हैं, पहले एटम न्यूट्रल है. जब भी हम इस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिमूव कराते हैं किसी भी सोर्स के थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी हम इसको एनर्जी देना चाहते हैं. जब ये एनर्जी इसमें से इतनी एनर्जी ले लेगा, ये रिमूव कर जाएगा, तो इधर एक होल प्रोड्यूस हो जाएगा जहाँ से वो रिमूव हुआ है इलेक्ट्रॉन.
तो इनको हम किसी भी एनर्जी के साथ रिमूव करवा सकते हैं, किसी भी मेथड के साथ। केमिकल रिएक्शन के साथ इन बैटरी हमारे पास सोर्स होती है, थर्मोकपल्स हीट हमारे पास, हीट के थ्रू भी हम इसको रिमूव करवा सकते हैं, फ्रिक्शन के थ्रू भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू भी। तो किसी भी प्रोसेस के थ्रू जब हम इसको रिमूव करवाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो पीछे एक होल क्रिएट हो जाता है। तो हम कहते हैं होल एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज। हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज हम ऐसे लग रहा होता है कि वो मूव कर रहे हैं, अदरवाइज़ हमेशा इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम ट्रेन की विंडो से बाहर देखें तो हम देखते हैं दूर जो हमारे पास दरख्त होते हैं वो हमें लगता है कि वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, अदरवाइज़ वो फिक्स होते हैं। इसी में भी यही कंडीशन होती है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं इस डायरेक्शन में तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें लग रहा होता है कि वो चार्जेस मूव कर रहे हैं, होल्स मूव कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो को हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, मैग्नेट्स में क्या थे, मैग्नेटिक पोल्स थे, हम कहते हैं बट द मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंगल टाइप, कि हम मैग्नेट्स को, उनके पोल्स को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है, इसका एक नॉर्थ पोल और ये एक साउथ पोल होता है। अब जब मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूँ, हाफ अगर कर दूँ इसको, क्या ऐसा होगा कि उसका नॉर्थ पोल अलहदा हो जाए और साउथ पोल अलहदा? नहीं, कभी भी नहीं होगा। क्या होगा, जब भी मैं इसको, अगर इसको ब्रेक करता करता एक छोटे से पीस को तक पहुँच जाऊँ, अगर इसको इतने छोटे छोटे पीस कर दूं कि एक पॉइंट बच जाए, तो उस पॉइंट के भी एक क्या होंगे, दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो इट मीन्स जब हम ब्रेक करते जाएंगे तो हर जो पीस होगा उसका भी एक नॉर्थ और साउथ पोल होगा, नॉर्थ और साउथ पोल होगा। इट मीन्स ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये था हमारे पास बेसिक डिफरेंस, क्योंकि हमने डिस्कस करना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ स्टेडी करंट, तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट होना मस्ट था। तो इस वजह से हमने इसको डिस्कस किया। हमारे पास नेक्स्ट आज जो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेट करता है, जिसको डिस्क्राइब किया था फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पियर्स ने। तो अब हम एम्पियर्स के ऑब्जर्वेशंस पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, जो आज हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हमने कहा कि क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू हम करंट पास करवाते हैं तो हम देखते हैं कि उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब उन मैग्नेटिक फील्ड को हमने ट्रेस आउट करना है, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड नज़र नहीं आ रही होती। तो हम उनको ट्रेस आउट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इसको ऑब्ज़र्व किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रोसेस को एम्पियर्स ने। तो ये एम्पियर्स की ऑब्जर्वेशन थी। तो उसके लिए बेटा आपके बुक में एक एक्टिविटी है, अब हम उस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक कंडक्टर, एक रॉड होगा, और उसको उसके साथ हमारे पास होगा एक कार्डबोर्ड, एक बैटरी और एक कंपास नीडल। सबसे पहले एक कंडक्टर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसको हम पास करवाएंगे किसी भी कार्डबोर्ड के थ्रू। जब भी हम उस कार्डबोर्ड के थ्रू उसको पास करवाएंगे, फिक्स करवा देंगे, तो उसके दो टर्मिनल्स होंगे, एक ये और एक एंड होंगे दो। तो जब भी हम उसको एक बैटरी के साथ अटैच कर देंगे, दोनों एंड्स के साथ, पॉजिटिव के साथ अटैच किया और इसको नेगेटिव के साथ अटैच कर दिया, तो हमने देखा कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई हैं, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आ रही होती। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दो एक्टिविटीज़। या तो हम स्प्रिंकल सम आयरन पीसीस, कुछ आयरन के पीसीस उसके ऊपर स्प्रे कर देते, इधर हम स्प्रिंकल कर देते हैं। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो आयरन को अट्रैक्ट करती हैं, इट मीन्स उसके ऊपर उसका इफेक्ट होता है। तो हम देखेंगे, पहले अगर हमने उसको बैटरी के साथ अटैच नहीं किया और यहाँ पर हमने उसको आयरन पीसेस को रख दिया, डिसऑर्डर शेप में हो गए, वो कोई भी ऑर्डर नहीं होगा। जैसे ही हमने उसको बैटरी के साथ अटैच किया तो वो जितने भी स्प्रिंकल्स होंगे आयरन पीस, वो अलाइन हो जाएंगे एक सर्कुलर पाथ में। तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। तो या तो फिर सबसे ईजी मेथड है, हम यूज़ करते हैं कंपास नीडल। कंपास क्या है? ये उसका एक छोटा सा ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें एक मैग्नेटाइज नीडल होती है, एक मैग्नेटाइज नीडल होती है। तो ये हमें बताती है नॉर्थ और साउथ पोल ज़मीन का, हमें पता लग जाता है। जब भी हम इसको फ्री स्पेस में रखेंगे तो ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्ट करेगी, यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ, क्योंकि हमारे अर्थ के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड होती हैं जिसे ये नेविगेट करता है। लेकिन जब भी हम इसको किसी एक्सटर्नल दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाएंगे, जो हमने खुद प्रोड्यूस करवाई हैं, कंडक्टर के थ्रू खुद प्रोड्यूस करवाई हैं करंट के फ्लो होने की वजह से और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, तब ये उस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड अलाइन हो जाएगा। तब हमें पता लग जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है और किस तरह से है, और इसकी नीडल
डिफ्लेक्शन शो करेगी, जब हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई हैं। नेक्स्ट, अगर हम देखते हैं कि जब भी हमने मैग्नेट कंपास को इसके पास लेके आए तो पहले उसकी कोई भी डायरेक्शन थी, देखें जैसे मैग्नेट पहले और कोई डायरेक्शन थी, जैसे मैं उस मैग्नेट को पास लेके आऊँ तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इसी तरह इधर भी होता है। अब ये परमानेंट बार मैग्नेट है, लेकिन ये हमारे पास कंडक्टर के थ्रू जब करंट पास कराएंगे फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं। जब भी हम इसको इसके पास लेके जाएंगे तो ये नीडल जो है डिफ्लेक्शन शो करेगी और अलाइन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल पहले हमने उसको यहाँ रखा, जब हमने इसको यहाँ रखा तो उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में अलाइन होगी। फिर हमने उसको यहाँ पर प्लेस किया, फिर हमने देखा कि उसकी जहाँ जहाँ हम इसको प्लेस करते जाएंगे और इसकी जो नीडल है वो अलाइन होती जाएगी, हम उसकी पेंसिल से ड्राइंग बनाते जाएंगे। जब हम ड्राइंग बनाकर उस कंपास को यहाँ से हटाते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी डायरेक्शन इस वे में शो हुई है। मींस जब भी हमने उसको अटैच किया था ऊपर वाले टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ और नीचे को नेगेटिव के साथ, तो करंट फ्लो हुआ इस डायरेक्शन में, कन्वेंशनल करंट। तो जैसे इस डायरेक्शन में शो करंट फ्लो हुआ तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुई, मींस क्लॉकवाइज। जब भी हम उसकी पोलैरिटी चेंज करते हैं, नेगेटिव ऊपर और पॉजिटिव नीचे, हम देखते हैं कि उसकी डायरेक्शन अब पॉजिटिव की यहाँ से यहाँ इस तरफ मूव करेगी। तो ये हम कहते हैं कि जब भी हम इस तरफ मूव करवाया तो कंपास नीडल ने इस तरफ डिफ्लेक्शन शो करवाई। तो जब करंट इस डायरेक्शन में था एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी कार्डबोर्ड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुई। तो ये था हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है। ये हमारे पास कंपास की एक छोटी सी डायग्राम है, हमने दिखा भी दिया आपको। तो इस तरह हम कहते हैं कि उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं। अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो हुई हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे हम मालूम कर सकते हैं बगैर कंपास के और स्प्रिंकल्स के। उसके लिए एक लॉ है, एक रूल है जिसे हम कहते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम किस तरह मालूम कर सकते हैं किसी स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू, उसके लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। उसके लिए क्या है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं हम उस डायरेक्शन में थंब की डायरेक्शन को ले लेंगे ऐसे। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो थंब शो करेगा, थंब पॉइंटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन द कर्लिंग फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो कर्ल्ड फिंगर्स है वो हमें डायरेक्शन देंगी मैग्नेटिक फील्ड की। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है कंडक्टर में थ्रू अ कंडक्टर करंट, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इस डायरेक्शन में, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब कंडक्टर में करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है ऐसे, तो हम उसको इस तरह ग्रिप करेंगे, डाउनवर्ड करंट थंब जो हमारे पास शो करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तब जो कर्लिंग फिंगर्स हैं मींस इस डायरेक्शन में, तब वो शो करेंगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो ये था हमारे पास राइट हैंड ग्रिप रूल। अब हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं सोलेनॉइड को, कि उसमें जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है किस तरह प्रोड्यूस होती हैं और उसकी डायरेक्शन क्या होती है। अब सोलेनॉइड है क्या, अ कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स इज कॉल्ड सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या है कि पहले स्ट्रेट कंडक्टर था, अब हम उसकी लूप्स बना ली। जब उसको अटैच किया पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो उसमें करंट फ्लो होने की वजह से उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, लेकिन स्ट्रॉन्गर। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी लूप्स हैं, हर लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और वो दोनों सब जितने भी मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वो सब एड अप होकर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे उसके अराउंड। जब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड में थी वो बिल्कुल एज इट इज़ थी जैसे हमारे पास परमानेंट बार मैग्नेट की होती हैं। तो हम कहते हैं कि सोलेनॉइड के जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो एक्ट करती हैं बिल्कुल जैसे बार मैग्नेट एक्ट करता है, क्योंकि उनकी दोनों की सेम डायग्राम बनती है, जो सेम मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट द टाइप ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट विच इज़ क्रिएटेड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कोयल। जब किसी कोयल में से हम करंट पास करवाते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तब हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो टेम्परेरी होता है, जब तक उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही हैं। अदरवाइज जैसे करंट हम उसको ब्रेक कर देंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये जो हमारे पास था ये एक परमानेंट मैग्नेट है, क्योंकि इसके अराउंड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस रहेंगी मौजूद रहेंगी, एग्जिस्ट करेंगी। लेकिन जो हमारे पास ये सोलेनॉइड है उसमें हम कोयल के साथ करंट फ्लो करवाते हैं, तब मैग्नेट बनता है। जैसे करंट ख़त्म किया वहाँ मैग्नेटिज्म जी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी वो भी ख़त्म हो गई। अब सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होंगी, लेकिन उनकी डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए भी हम राइट हैंड ग्रिप रूल यूज़ करते हैं। अब राइट हैंड ग्रिप रूल कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डायरेक्शन कोयल में ऐसे है, इस डायरेक्शन में मींस ऐसे,
तो हमारे पास कर्लिंग फिंगर्स डायरेक्शन लेंगे करंट के डायरेक्शन में, वहाँ पर थंब लेते थे करंट के डायरेक्शन में, यहाँ पर आप कर्लिंग फिंगर्स लेंगे लूप में जो करंट फ्लो कर रहा उस डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो जो इरेक्ट थंब है हमारा वो शो करेगा कि इस सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ उसका नॉर्थ पोल है और इस तरफ साउथ पोल है। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सोलेनोइड। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अराउंड थ्रू द राइट हैंड ग्रिप रूल। कर्लिंग फिंगर्स शो करेंगे करंट की डायरेक्शन को, और जो इरेक्ट थंब है वो हमें शो करवाएगा कि इसका नॉर्थ पोल कहाँ है और साउथ पोल कहाँ है। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड। तो आपने इसको लर्न भी करना है तमाम टॉपिक्स को। सो स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।